हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कुछ एज एग्जांपल। आपको उसी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस लेक्चर। सो देयर इज वन क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड पीरियड ऑफ 2 सेकंड। Find the speed of particle at point where its acceleration is half of its maximum value. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सारा डेटा कलेक्ट करना है। सो डेटा क्या क्या है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, टाइम क्या है 2 सेकेंड। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, रिमेंबर पीरियड दिया है, ठीक है। सो वी हैव कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर हमारे पास क्या है 5 सेकेंड, ओके। फिर हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है कितना है 5 सेंटीमीटर, कैपिटल ए दिया गया है, ठीक है। सो वी हैव कैपिटल ए ऑल्सो, सो दिस इज कैपिटल ए। सो फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, मुझे क्या निकालना है, स्मॉल वी, वेयर द एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। Now, what do you mean by half of its maximum value? So, it is nothing but a is equal to a maximum by 2. And you already know कि maximum acceleration कितना होता है simple harmonic motion के लिए, a omega square, correct? So, a omega square by 2. Now, small a is nothing but capital A omega square by 2. So, we want to calculate what is velocity. So, in this information still we have to calculate what is x. क्योंकि what is velocity formula, omega is equal to root of a square minus x square. We need to calculate what is x. Now we already know कि acceleration is also written as omega square x, isn't it? So x is equal to a by omega square. Now what is a here, a maximum by 2, and what is a maximum, a omega square. So we don't need omega in this calculation, means x के calculation में. So what is it, x is equal to a by 2. So substitute that here. So velocity will be omega root of a square minus x square. So what is x now, a by 2. Substitute करो तो क्या आएगा, root of 3/4 a square. a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। Now I want to find what is omega, क्योंकि omega की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। Now हमारे पास टाइम पीरियड दिया, तो what is omega, 2 by t. So 2 by t अगर सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे सीधा, so it is nothing but 2 by t, and t कितना है 2 सेकेंड, डायरेक्ट है, राइट। सो नाउ यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड डेटा। सो इफ यू जस्ट कंप्लीट द कैलकुलेशन यू विल गेट 13.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 12 seconds and amplitude 8 seconds. If initially the particle is at positive extremity, how much time will it take to cover distance 6 centimeter from extreme position? याद रखो extreme position से बोला उसने, extreme position. So please remember this kind of keywords, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने में आसान रहती है। So we have capital T 12 second and we have amplitude again 8 second. So ये दोनों क्वांटिटी मेरे पास है। So अगर capital T है then I know what is omega. So 2 by t करके सीधा 5/6 रीडिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। Now initially the particle is at positive extreme position, मतलब अगर ये यहाँ पे था तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पे थे, तो अगर ये 0 था तो ये कितना था π/2, करेक्ट। तो हमारे पास इनिशियल फेज कितना आ गया, अल्फा π/2 रेडियन दिया गया है। सो टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड नो द थियरी प्रॉपर्ली, ठीक है। So we have alpha is equal to π/2 radian. Okay, so from extreme position what is it, x is equal to a cos omega t है हमारा, करेक्ट। So omega t क्या हो गया, π/2, सब्स्टिट्यूट करो तो 2 is equal to 8 cos π/6 into t, omega हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। Now we can calculate what is t here. Okay, what is t, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। Please complete this calculation part. So please do this calculation, okay. Now let's move to the next question. When displacement in simple harmonic motion is 1/3 of amplitude, what is the fraction of total energy in kinetic energy and fraction of potential energy, ठीक है।
तो टोटल एनर्जी में कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी का, कितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना निकालना है. सो बेसिकली अगर हम दोनों का रेशियो निकालें टोटल एनर्जी के साथ तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि क्या बोला उसने, फ्रैक्शन निकालना है टोटल एनर्जी के साथ. सो अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो फिर मुश्किल है. ठीक है. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी. किसके कंपेयर में, टोटल एनर्जी के कंपेयर में. सो वी नीड टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी. सो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल हाफ के हाफ 1/2 k कैपिटल A स्क्वायर. सो you might be thinking कि सर ये कहाँ से आ गया. so if you just see the equation, what is energy? Energy is nothing but the force into displacement. हमारा force कितना था, k into x. ठीक है. और अभी टोटल की बात चल रही है, राइट. सो इट इज k into कैपिटल A. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, कैपिटल A पॉसिबल है. सो कैपिटल A इंटू ए क्या होता है, k A स्क्वायर. 1/2 कहाँ से आता है, जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो. जैसे कि अगर आप ऐसे लिखते हो f dx, f x इंटू डी एक्स, सॉरी लेट मी जस्ट डू इट, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन आया होगा इसमें. सो अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x. ठीक है. और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा थ्रू आउट द लेंथ. तो अगर आप उसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, kx. ठीक है. सो k बाहर आ जाएगा. प्लीज कंप्लीट दिस कैलकुलेशन. ठीक है गाइस. kx dx. oh sorry, this is wrong. this x should not be there. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये dx है. ठीक है. सो के एक्स डी एक्स, ये एक्स डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2. करेक्ट. अब अगर मानो कि ये 0 टू कैपिटल A तक गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपना कितना है, कैपिटल A. सो प्लीज कंप्लीट दिस कैलकुलेशन, यू गेट 1/2 k A स्क्वायर. ठीक है. सो एनर्जी का ये इक्वेशन होता है. सो दिस इज समथिंग, प्लीज वर्कआउट, बहुत आसान है. अगर नहीं समझ में आ रहा देन प्लीज लेट मी नो. सो टोटल एनर्जी कितना आएगा, 1/2 k A स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी कितना आना चाहिए, kinetic energy is nothing but 1/2 k A square minus x square and potential energy will be 1/2 k x square. Now please remember this formula, क्योंकि फिलहाल आपके लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So you can see the derivation for this. These derivations are very much easy. मैं आपको छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ फिर भी. टोटल एनर्जी अपना क्या है, 1/2 k A स्क्वायर. ठीक है. जैसे कि ये टोटल एनर्जी इतना पार्ट. अब लेट्स सपोज दैट x डिस्प्लेसमेंट में आप बात कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन तक आपका ये बॉब या फिर मास जो भी आप कंसिडर कर रहे हो फिलहाल, तो ये मास यहाँ तक पहुंच गया, स्प्रिंग मास सिस्टम. ठीक है. x पोजीशन तक. तो टोटल एनर्जी कवर्ड जो है वो 1/2 k स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ इतना जो कवर्ड है वो कितना, 1/2 k x स्क्वायर. सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय दैट मास, एंड जो रिमेनिंग है 1/2 k A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. So please remember this formula. So now that you know all the formula, what is x relation with capital A? It is nothing but 1/3 of the amplitude. So x is equal to capital A by 3. So x is equal to capital A by 3. So potential energy by total energy is nothing but 1/2 k x square or 1/2 k is k x square by k A square. k कैंसिल हो जाएगा, हमें रेशियो मिल जाएगा x by A का. We already have the x by A ratio, so it is nothing but 1/9. So potential energy is 1/9 of total energy. Similarly, you can do the same thing for kinetic energy also. So kinetic energy you will get 8/9 of total energy. You can just do this also, that ये 1/9 है तो total energy कितना बाकी कितना बचा, 8/9. So बाकी kinetic energy का फ्रैक्शन बचेगा 8/9. So that's a short trick. I am again repeating, please remember this formula. ठीक है. This is very important. So let's move on. The period of oscillation
for of simple pendulum is increased by 20%. A period of oscillation of simple pendulum is increased by 20% when its length is increased by 44 centimeter. Find its initial length and initial period. तो हमारे पास सारा डेटा गिवन है. क्या दिया है उसने? पीरियड पहले लेट सपोज पहला पीरियड T1 था, लेट सपोज पहले T1 था, ठीक है. फिर उसने बोला जो T2 है वो 20% इंक्रीज हो गया. तो T2 क्या आना चाहिए? पहले T1 जितना होगा ये प्लस उसमें क्या होगा 20% इंक्रीज हो गया 0.2 20% बेसिकली, ठीक है. सो 20% ऑफ T1, तो ये क्या आ जाएगा 120 बेसिकली. ये क्या है? ये T1 100% है, ये 100% है प्लस 20 तो 1.2. जब भी हम बोलते हैं कि कोई इंक्रीज बाई ये वर्ड यूज करता है, याद रखना 1 प्लस वो 0.2 करते हैं. यहाँ पे परसेंटेज अगर 50% है तो 1.5, 20% है इसलिए 1.2. दिस इज द ट्रिक हियर. सो 20% के लिए हम क्या लिखेंगे 1.2. सो T2 by T1 is equal to 120%, 100 plus 20 divided by 2. So T2 is equal to 1.2 times of T1. You can directly write it by just looking the statement also if you just note down this part. Now length is increased by 44. So length पहले था L1, लेट सपोज पहले L1 था और L2 कितना है 44 सेंटीमीटर, 44 प्लस L1, ठीक है. अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये 0.44 है. सो यू कैन नॉट सी हियर एक्चुअली इट्स 0 पॉइंट लिखा है यहाँ पे बट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. सो L1 और T1 कितना वो निकालना है. So we already know what is the relation between time period and length. It is T is directly proportional to square root of length. So you can write T1 by T2 by T1 is equal to root of L2 by L1. We already have what is the ratio of T2 by T1? It is nothing but 6 by 5, 120 by 100 करके. So we already know what is L2 in terms of L1 plus 0.44. So substitute करो and calculate L1. So you can calculate L1 from here. ठीक है. So if you calculate L1 from there, then if you can ये simple सा calculation है, please complete the calculation. So if I want to find initial period, time period, so T1 is equal to 2 pi root of Ln by G. Now we from the previous calculation you can calculate what is L1. एक आएगा basically 1 मीटर जितना. So T1 is equal to 2 into 2 3.14 1 by 9.8. अगर ये कैलकुलेट करके तो T1 आएगा. So in this numerical trick is ये समझना आना चाहिए. Previous numerical में जो ट्रिक था वो एनर्जी का था. So I am trying to cover all kind of different numericals. So there is no different type like a clock regulated by second pendulum keeps correct time. ठीक है, वो correct time measure कर रहा है. During the summer, the length of the pendulum increased by 1.01 meter. How much will clock gain in 1 day? You have to calculate. मतलब हमें ये देखना है कि जब समर है उस टाइम पे जो एक्सटेंशन हुआ है पेंडुलम की लेंथ का, पहले लेंथ कितना था 1, फिर कितना बढ़ गया वो 1.01. बेसिकली यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ अगर आप कैलकुलेट 1% इंक्रीज हो गया है. ठीक है. सो अगर आप उस हिसाब से देखो तो 1.01 जितना लेंथ बढ़ गया. सो आपको ये देखना है अगर ऐसा हुआ है तो टाइम कितना आपका बढ़ रहा है, क्लॉक कितना गेन कर रहा है. या तो गेन भी कर सकता है या लूज भी कर सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा. पर कितने दिन के लिए? एक दिन के अंदर अंदर इन 1 डे. सो लेट्स जस्ट गो विद द न्यूमेरिकल. L is equal to 1.01 मीटर, G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो लॉस ऑफ टाइम पीरियड कितना हमारा डेल्टा टी वो देखना है हमें. सो पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल टी कितना होगा. सो कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड आफ्टर द एक्सटेंशन, वो कितना है 2 पाई रूट ऑफ L by G. तो कैपिटल L कितना बढ़ गया था 1.01. सो यू आर कीपिंग द सेम डेटा रिमेंबर. ठीक है. सो 2 into 3.14 root of 1.01 by 9.8. So 6.28 into square root of 0.1031. So if you just complete this calculation, you will get time period is equal to
2.017 सेकेंड. नाउ दिस इज द टाइम आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ. नाउ हमें ये देखना है कि अगर ये हुआ है टाइम पीरियड इंक्रीज, तो फिर कितना लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है. सो द पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम, रिमेंबर इट्स अ सेकंड पेंडुलम, क्वेश्चन में दिया गया है. सो सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड कितना था 2 सेकंड. सो 2 सेकंड से कितना हो गया 2.017 सेकंड. मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, ये गेन हुआ है. करेक्ट, ये जो है वो गेन हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर. लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि वक्त ज्यादा लग रहा है, तो लेकिन ये ट्रिकी पार्ट है. हम बोल रहे हैं कि ये गेन हुआ इन टर्म्स ऑफ द डिजिट्स, बट जब हम बोलते हैं कि 5 सेकंड की जगह 7 सेकंड लग रहा है, तो हमें बेसिकली क्या हुआ है, लॉस हुआ है, वो ज्यादा टाइम लग रहा है. दैट इज नथिंग बट लॉस ऑफ द टाइम पीरियड इन अ डे. सो डेल्टा टी अगर देखना है, तो अगर 2 सेकंड के अंदर लॉस देखना है, तो कितना हुआ है, पहले 2.017 सेकंड हुआ है आफ्टर एक्सटेंशन -2. 0.017 डेल्टा टी हुआ है वो 2 सेकंड के लिए हुआ है. ठीक, अब हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, एक दिन के लिए. सो डेल्टा टी एक दिन में कितना लॉस होगा, तो 24 इंटू 3600, बेसिकली सेकंड को आप आवर्स में कन्वर्ट करिए, सॉरी डेज में. तो 24 डेज इंटू 360 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक है. सो 24 डे 3600 इंटू 0.017 डिवाइडेड बाय 2. अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 3 इंटू 1.7. दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन. सो लॉस विल बी 734 3.3 सेकेंड. लेट मी रिपीट इट अगेन. टाइम पीरियड जब बड़ा था